Hello students, welcome back to our YouTube channel Concepts in Science. In today's video, we will discuss about the connective tissue. This connective tissue is most abundant and widely distributed in the complex animals. सबसे ज्यादा जो बॉडी में पाया जाता है widely distributed tissue in the complex animals, and this connective tissue is mesodermal in origin, and as name indicate, the name is given to it, that is connective tissue, because of its special function that it connects or support or link different body parts or different body organs or tissues. इसलिए हमने इसको क्या कहा है, connective tissue, because it links or support different body organs. Then some characteristics of the connective tissue. जो किसी भी characteristics connective tissue को define करेंगे. These are here in the connective tissue. The cells are arranged in the matrix. और हम यहाँ पे कह सकते हैं here the cells are scattered in the matrix, and the matrix which is present here, it may be solid or liquid. यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, जस्ट लाइक हम समझ सकते हैं जैसे मिल्क में हमारे दाने पड़े होते हैं चावल के, तो उसमें जो मिल्क है दैट इज मैट्रिक्स. तो सिमिलर टू दैट यहाँ पे एक मैट्रिक्स है, एक बेस सब्सटेंस है जिसके अंदर कुछ सेल्स हैं वो स्कैटर्ड होती हैं. अब यहाँ पे मैट्रिक्स हो सकता है कि लिक्विड हो सकता है कि सॉलिड हो. अलोंग विद दिस, these cells secrete some fibers, and these fibers are made up of structural proteins. Structural proteins like collagen. तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं जो मैट्रिक्स में स्कैटर्ड हैं, वो कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के फाइबर सीक्रेट करती हैं, जिनको हम कोलेजन फाइबर्स या इलास्टिन फाइबर्स भी बोलते हैं. सो दीज फाइबर्स आर आल्सो स्कैटर्ड इन द मैट्रिक्स. नाउ on the basis of the arrangement of these cells and these fibers, the connective tissue is of three types. तीन तरह के connective tissue हैं. किसके बेस पे? On the basis of the arrangement of these cells. और यहाँ पे जो ये cells हैं, these are fibroblast cell. यहाँ पे cells कौन सी होंगी? ये जो cells हैं, ये हैं fibroblast cell. Means cells which secretes fibers or which synthesize fibers. So on the basis of the arrangement of these cells and the fibers arranged by secreted by them, the connective tissue is of three types. You must remember these types of connective tissue clearly. It will be quite confusing for the students. It has three types of tissue, that is loose connective tissue, second one is dense connective tissue, and third one is specialized या special type of connective tissue. Here in the loose connective tissue, the fibroblast cells and fibers are arranged loosely in the matrix. You can see here in this diagram, these cells are
ये जो सेल आपको दिखाई दे रही है, दीज आर फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये क्या है यहाँ पे, फाइब्रोब्लास्ट सेल which secretes this collagen fibers. Here these are collagen fibers. So here this fibroblast cell and these fibers are loosely arranged. ये थोड़ा दूर दूर एक दूसरे से अरेंज है। यहाँ पे जो दूसरी सेल्स हैं जैसे ये है, these are macrophages along with the fibroblast cell. Some other immunity providing cells are also present here, just like macrophages, which are engulfing in nature, which engulf the foreign particles which enter into the tissue, and these are mast cells which are associated with the allergic reactions, and here these are the blood vessels which supply blood, और टिश्यू फ्लूइड जो होता है ब्लड वो सप्लाई होता है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू इस टिश्यू में। तो ये जो है दिस इज द लूज कनेक्टिव टिश्यू। हियर द एग्जांपल्स लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या हुई, द सेल्स यहाँ पे कौन सी हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल एंड फाइबर्स। अब यहाँ पे फाइबर्स कोलेजन फाइबर्स की बात कर रहे हैं, are arranged loosely in the matrix. मैट्रिक्स के अंदर ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। तो अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू का हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल्स ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू आर alveolar tissue which is present beneath the skin, हमारे स्किन के नीचे होता है, जिसकी वजह से हम अपनी स्किन को थोड़ा ऊपर उठा सकते हैं। इसका मतलब हमारी स्किन और मसल्स के बीच में जो टिश्यू है दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा वो लूजली अरेंज्ड है वहां की सेल्स, इसीलिए हम अपनी स्किन को थोड़ा ऐसे ऊपर उठा सकते हैं। सेकंड है इसमें एग्जांपल एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू विच इज एसोसिएटेड विद द स्टोरेज ऑफ फैट्स। जो हम खाते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्स्ट्रा जो फैट है विच इज नॉट यूटिलाइज्ड बाय द सेल दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट्स इन दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। दिस इज आल्सो प्रेजेंट बीनीथ आवर स्किन। देन द सेकंड वन इज dense connective tissue. Here in the dense connective tissue the same cells means fibroblast cells and fibers, fibroblasts and fibers are compactly arranged. वो सारे क्या हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज हैं। तो यहाँ पे जो अरेंजमेंट है फाइबर्स का, ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स, दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू इज अगेन ऑफ टू टाइप्स, डेंस regular and dense irregular connective tissue. जो dense regular connective tissue है, here this collagen fibers you can see here in this diagram, these are the fibroblast cells, these are fibroblast cell and these are fibers, collagen fibers. Here these fibers are arranged in a definite pattern parallel to each other. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, these fibers and the fibroblast cells are compactly arranged and they are arranged in a definite pattern. एक similar pattern में सारे parallel to each other arranged हैं। इस तरह के arrangement को हम क्या कहेंगे, dense regular type of tissue. तो अगर हम dense regular में एग्जाम्पल देखें तो इसके एग्जाम्पल होंगी टेंडन एंड लिगामेंट। यहाँ पे टेंडन क्या है, द टिश्यू विच कनेक्ट्स मसल टू द बोन एंड लिगामेंट द टिश्यू विच कनेक्ट्स बोन टू द बोन। देन dense irregular, here in the dense irregular connective tissue the fibroblast cells
and fibers are closely packed or densely arranged but not in a definite pattern. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में, these are fibroblast cell and these are fibers, but here these fibers are not in a definite pattern. Some are like this, some are like this. Means इन सब का अरेंजमेंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, इनडेफिनिट अरेंजमेंट है इनका, इसलिए हमने इसको क्या कहा, डेंस इरेगुलर. एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन आवर स्किन. ये किसका एग्जांपल है, डेंस इरेगुलर का एग्जांपल है. एंड दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन आवर skin. Then the third type of tissue is specialized connective tissue. The examples of the specialized connective tissue are, इसके एग्जाम्पल होंगे bone, cartilage, blood and lymph. Now we will study all these tissue, that is areolar, adipose, tendon, ligament, bone, cartilage, blood, lymph separately. फर्स्ट जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू. जो एरियोलर टिश्यू है that is most widely distributed tissue. सबसे ज्यादा जो टिश्यू है बॉडी में वो एरियोलर टिश्यू ही होता है कनेक्टिव टिश्यू में. दिस टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. ये हमारी स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है. एंड आल्सो प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ब्लड वेसल्स और नर्व्स के चारों तरफ भी होता है. इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द बोन में. सो दिस इज द लोकेशन ऑफ एरियोलर टिश्यू. इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्किन एंड मसल्स. इट कनेक्ट द स्किन विद द मसल्स. इट इज प्रेजेंट अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन में. Then what is the function of this areolar tissue? Yeah, role of this areolar tissue. This tissue connects the skin with the muscles. तो पहला इसका फंक्शन हो गया, connects skin with the muscles. जैसे ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ है, नर्व्स के चारों तरफ है, तो इट कनेक्ट्स ब्लड वेसल्स, उनको भी कनेक्ट करता है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स विद सराउंडिंग टिश्यू. जो उसके सराउंडिंग टिश्यू है उसके साथ ही उसको कनेक्ट करता है. अलॉन्ग विद दिस इट प्रोटेक्ट द इंटरनल और इट एक्ट्स एज ए शॉक अब्जॉर्बर और कुशन. कुशन का काम करता है, शॉक अब्जॉर्बर का काम करता है फॉर इंटरनल ऑर्गन्स. अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू वेयर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स secrete these fibers, collagen fibers, and this is the blood vessels where other cells like macrophages and mast cells which are responsible for the allergic reactions are also present in the areolar connective tissue. Then next है हमारा adipose tissue. जो next example है loose connective tissue का, that is adipose tissue. यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा या इस टिश्यू का क्या काम है. तो सेकंड जो हमारा टिश्यू है वो है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ एडिपोसाइट्स. इसके अंदर
एडिपोसाइट सेल्स होती हैं जो कि स्टोरेज का काम करती हैं, फैट्स को स्टोर करती हैं। सो दिस एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, हमारी स्किन के नीचे प्रेजेंट है, एंड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स है उनके चारों तरफ ये प्रेजेंट होता है। क्या काम है एक्चुअली में इसका? इट हैज एडिपोसाइट्स सेल्स which stores या which contains fat globules। यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, all these are एडिपोसाइट सेल्स हैविंग फैट ग्लोब्यूल्स। तो यहाँ पे ये जो सेल्स हैं, these cells are having brown fat ग्लोब्यूल्स। जो ब्राउन फैट है ये बच्चों में ज्यादा होता है, जो उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से उनको सर्दी कम लगती है बच्चों को एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। और ये वाले जो है दीज आर आल्सो एडिपोसाइट्स हैविंग व्हाइट ग्लोब्यूल्स। और ये जो है यहाँ पे है, ये है कोलेजन फाइबर्स। Along this, blood supply is also here. Blood vessels are also present here. So the main function of this adipose tissue is, function क्या होगा adipose tissue का? It stores extra fat। ये एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करता है, जो हम खाते हैं, जो बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पाती हमारी सेल्स, जो एक्स्ट्रा बचता है उसको ये स्टोर कर लेती हैं। एंड इट एक्ट्स एज ए शॉक अब्जॉर्बर, कुशन का काम भी करते हैं फॉर इंटरनल ऑर्गन्स। अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। प्रोटेक्ट द ऑर्गन्स, अंदर वाले जो ऑर्गन्स है जिनके चारों तरफ ये प्रेजेंट है, उनको ये मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। इसके साथ ही ये जो है ये एज ए इंसुलेटर भी काम करता है। ये हमारी बॉडी के हीट लॉस को भी रोकता है। तो आपने देखा होगा जो हेल्दी पर्सन्स होते हैं जिसमें एडिपोज टिश्यू ज्यादा होता है, उनको ठंड एज कम्पेयर टू वीक पर्सन्स थोड़ा कम लगती है।